Hi everyone, a very good evening and welcome to my channel. In this video, I'll discuss the question paper of ATC. I have this PDF for 2018. So I'll discuss for quant section. But before starting the video, I'm sorry for being so inconsistent on YouTube these days. Actually, I also have a few exams in the upcoming days, so I'm preparing for that. And yeah, anyway, I'll try my best to provide you videos more often. So on to the question paper now. Let's start with question number one. So the question number one is okay. So 60% employees of a company are females, and 25% of them earn more than rupees 50,000 per month. 45% of all the employees, okay, more than 50,000 per month. Then the percentage of male employees earn rupees. I think it should be 50,000 only. There's no 5,000 earlier. So 50,000 or less is. So let's say मान लेते हैं, ऐसा अज्यूम कर लेते हैं, लेट्स अज्यूम और लेट्स से we have a total of 100 employees in the company. Okay, so out of those 100 employees, they are saying, the question is saying like 60% employees are female and the rest are obviously males. So 40% are males, these are females, and these are males. Now and 25% of them earn more than 50,000 per month. ओके, सो जो 60% फीमेल थी ना, इसका जो 25% है वो 50,000 से ज़्यादा अर्न करती है पर मंथ, उनकी सैलरी 50,000 से ज़्यादा है. सो इसका 25%, यानी कि 25% का मतलब क्या होता है, 1/4, 1/4. तो इसका 1/4 करेंगे तो 15 आ जाएगा. यानी कि 15 फीमेल जो है वो क्या करती है, 50 प्लस अर्न करती है. इफ 45% ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज अर्न मोर देन 50,000. ओके, अब इसका जो है 45% वो मोर देन 50,000 अर्न करता है. ठीक है, तो इसका 45% कितना होगा, 100 हमने इसलिए लिया है क्योंकि इसका जितना भी परसेंट होता है ना, वो जितना परसेंटेज होगा वो नंबर के बराबर ही होगा. ठीक है, तो अभी यहाँ पे 45 रहेगा आपका टोटल एम्प्लॉयज. 15 इसमें से फीमेल्स निकल चुके हैं, मेल्स कितने बचे, 30 बचे. ठीक है, अब उसके बाद देन द परसेंटेज ऑफ मेल अर्न employees earning 50,000 or less is okay. So these are the males who earn more than 50,000. So the males who are earning less than 50,000 are 10 in number. So we have been asked the percentage. So 10/40, यही तो 10 है ना, जो 50,000 या उससे कम अर्न कर रहे हैं वो हमें पता नहीं है. हमें केवल 50,000 से ज्यादा का पता था, वो हमने निकाल दिया है. 10/40, 10/40 इंटू 100. तो 1/4 सबको पता है, ये 25% होता है. तो 25% विल बी द आंसर. Moving on to the next question, second question. A boat takes 0.5 hour more to travel a distance of 45 kilometer upstream than to travel the distance downstream. Okay, same distance. If the speed of the boat in still water is 4 times the speed of the stream, then in what time will it cross a distance of 72 डाउनस्ट्रीम. ओके फाइन. देखो, एक होता है आपका अपस्ट्रीम, एक होता है आपका डाउनस्ट्रीम. अपस्ट्रीम क्या होता है, जैसे पानी का बहाव, पानी ऐसे ऐसे बह रहा है उधर की तरफ. ठीक है, अपस्ट्रीम का मतलब है इसके अगेंस्ट जाना. if you are going against the motion, then we'll say you are going upstream. Okay, it's the upstream motion. But what is downstream? Like in this way the water is flowing and you are flowing with the motion. You are also going in this way, or your boat is going this way, or a man is swimming this way. So it means that is downstream. वो with the motion, downstream against the motion, upstream पानी के बहाव के साथ जाना, downstream पानी के against जाना. ठीक है, वो होता है अपस्ट्रीम. चलो, तो अपस्ट्रीम क्या होता है, अब देखो. अपस्ट्रीम जब आप किसी भी चीज के अगेंस्ट जाओगे, हवा चल रही है इधर या पानी चल रहा है इधर को चल रहा है और आप इधर को मूव कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि आपकी स्पीड कम हो जाएगी. लेकिन अगर आप इसके साथ जाओगे तो बहुत बार ऐसे भी फील होता है, अगर हवा इस साइड की चल रही है आपको लगता है आप उड़ रहे हो, आप मतलब वही उड़ने वाले हो, है ना. तो इस तरफ आपको ज्यादा जोर नहीं पड़ेगा, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी. तो इसीलिए डाउन स्ट्रीम में दो चीजें प्लस होती है, इसमें माइनस होती हैं, अगर आपसे याद नहीं रखा जाता है फॉर्मूला को. अब क्या चीजें होती हैं, एक होता है आपकी स्टिल वाटर की, जब पानी बिल्कुल स्टिल है ना,
स्टिल वाटर में स्पीड इंसान की या फिर बोट की, किसी की भी मान लो, एक तो आपकी तब जो स्पीड होगी वो, ठीक है, वो होती है, आप लेट्स से W बोल दो आप उसको, ठीक है। और एक होती है स्ट्रीम, जो पानी के जो बहाव की जो स्पीड होती है ना, वो पानी का बहाव जिस तेजी से जा रहा है, दैट इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, तो उसको बोल दो S। तो ये हो जाते हैं आपके फॉर्मूला दोनों। अब बस हम इसी से सॉल्व करेंगे। अभी बोल रहा है कि जो स्टिल वाटर की स्पीड है ना, वो 4 टाइम्स है इसके, तो उसको कुछ भी मान लो, x मान लो, तो आपकी स्टिल वाटर की स्पीड हो जाएगी 4x, ओ सॉरी x माने है तो 4x, तो 4x माइनस x, तो आपकी अपस्ट्रीम जो हो जाएगी 3x, डाउनस्ट्रीम हो जाएगी 4 और 1 5, 5x। ओके, सो नाउ व्हाट आर द सेइंग, ओके, सो वो कह रहे हैं कि 45 किलोमीटर जब वो अपस्ट्रीम से जाता है तो आधा घंटा ज़्यादा रहता है जब वो डाउनस्ट्रीम में जाता है। और यू कैन से 5, मेरे हिसाब से कट जाएगा, तो आप उसको 5/10 ही लिख लो, क्योंकि ये दिख रहा है ना कटने वाला। 15 3 45, 5 9 5 9 जा 45, तो 15 और 9 6, 6/x इक्वल टू 1/2, यू कैन से 12, ठीक है। क्या आ गई 12, स्पीड आ गई 12 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपकी अपस्ट्रीम कितनी हो जाएगी, 12 तिया 36, डाउनस्ट्रीम आपकी हो जाएगी 12 पंजे 60, ठीक है। तो अब वो बोल रहा है 75 किलोमीटर अगर डाउनस्ट्रीम जाएगा तो कितना टाइम लगेगा, 12 छिक 75, 12 पंजे 60, 1/5 आवर्स है ऑप्शन, ये रहा ऑप्शन। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू, क्या होता है अपस्ट्रीम, क्या होता है डाउनस्ट्रीम, इनका फॉर्मूला कैसे आया, और बाकी मैंने आपको बता ही दिया। कोई डाउट हो किसी क्वेश्चन में, आप नीचे क्वेश्चन नंबर डाल दिया करो बस। लास्ट वीडियो पे मैंने जो रिस्पॉन्स देखा था, सच में आई जस्ट कांट थैंक यू इन ऑल ऑफ यू, सो थैंक यू फॉर दैट। चलो अब चलते हैं, और कोई भी अगर क्वेरी हो तो नीचे बस क्वेश्चन नंबर डाल देना, मैं आपको बता दूंगी या फिर ईमेल कर दूंगी डिटेल में सॉल्यूशन, एक एक चीज़ लिख के। चलिए थर्ड क्वेश्चन है, अ सम इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट्स टू दिस इन 2 years एंड दिस इन 3 years एट अ सर्टेन रेट परसेंटेज पर एनम, when the interest is compounded annually, what will the sum amount to at the same rate at 2/3 years compounded annually? अभी ना वीडियो को अभी की अभी पॉज करो, इस क्वेश्चन को करके देखो प्लीज, अभी इसको ट्राई करो, क्योंकि एक बहुत ही अच्छी चीज अभी सामने आएगी आप लोगों के अगर इसको ट्राई करोगे तो। सो आई होप आपने 2-3 मिनट लगा के क्वेश्चन को ट्राई किया होगा, और आपने कैसे किया होगा, रेट निकाला होगा कैसे, इसमें से ये माइनस किया होगा, जैसे कुछ भी लेट से एक्स आ गया कुछ भी, फिर 3136 रखा होगा, फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया होगा और आपका रेट आ गया होगा, फिर आप हो गए होगे बहुत खुश कि वाह रेट आ गया, अब तो मैं आगे कर ही लूंगा। फिर आपने जैसे तैसे जो 2 साल का इसको आपने अमाउंट माना होगा, वहां से आपका प्रिंसिपल आ गया होगा, फॉर्मूला ये वाला रख के, अरे 1+r/t2 = 3136 रखा होगा, रेट आपको पता है, टाइम सॉरी 100 आपको पता है, टाइम तो 2 है ही, प्रिंसिपल यहाँ से आ गया होगा, है ना। अब प्रिंसिपल निकाल लिया, अब ये 2/3 years का आप ट्री मेथड से या फिर किसी मेथड से निकाल लेंगे, है ना, ऐसे ही किया होगा। पर नहीं, इसमें एक चीज देखो आप लोग, बहुत अच्छी चीज जो है ये देखो, आपको 2 साल का दे रखा है, 2 साल का दे रखा है 3136, 3 साल का आपको दे रखा है जो 3 साल बाद होगा 3512.32, 3 2, ठीक है, ये दे रखा है। आपको पूछा है 2/3, और सबसे अच्छी बात यही है, इन्होंने कैलकुलेशन रिड्यूस करने के लिए ये चीज पूछी है। तो देखो जो आपका थर्ड ईयर का था, केवल थर्ड ईयर, आई एम नॉट आस्किंग फॉर द 3 years एंटायरली, जस्ट द थर्ड ईयर, तो थर्ड ईयर का आपका क्या होगा, 2 साल के बाद और 3 से पहले तक, यानी कि इसमें से ये चीज अगर माइनस कर देंगे तो हमारे केवल थर्ड ईयर का निकल जाएगा। तो करो माइनस, 0.32, 12 में से 6 गए 6, 10 में से 3 गए 7, 4 में से 1 गया 3, तो वो कितना आ गया, 376.32, ये केवल आपका थर्ड ईयर का आया है, जो आपके थर्ड ईयर का इंटरेस्ट था, ठीक है, जो इस पे जो इंटरेस्ट लगा, इसी पे लगेगा ना इंटरेस्ट, वो आ गया आपका। अब थर्ड ईयर का आपका आ गया, अब आपको केवल 2/3 निकालना है,
2 साल का हमारे पास है, आपको केवल अगले जो साल है उसका 2/3 निकालना है। तो अगर मैं इसको 2/3 इंटू में 376 पॉइंट क्या है 32 कर दूं, मेरा आंसर आ जाएगा ना? आ जाएगा, क्या आएगा? 12544, हाँ पॉइंट 88, और ये हो जाएगा आपका 250। ठीक है, 250.88। अब देखो 2 साल का ये रहा, अगले साल का 2/3 पार्ट का ये रहा। तो अब इन दोनों को हम कर देंगे ऐड, तो कितना हो जाएगा 0.88, 6, 5 और 3 8, 2 3 3, 3386.88। पॉइंट में तो कुछ है, अच्छा नियरेस्ट टू 1 रुपी, ओके। तो ये आपका आंसर हो गया, समझ गए? तो बिल्कुल कुछ सेकंड्स में होना चाहिए आंसर, की 30-40 सेकंड में होगा, लेकिन हम ऐसे ही क्वेश्चंस को रेट निकालने में लग जाएंगे, फिर प्रिंसिपल निकालेंगे, 2-3 मिनट उसमें हम वेस्ट कर देते हैं अपनी। आई होप यू गेट इट। ओके, सो नेक्स्ट वन इज, देखो ऐसा कुछ भी देखो ना कि आपको a+b a-b बनता दिख रहा है, तो उसमें फटाफट कुछ भी मत सोचो, एलसीएम लो, और या फिर एलसीएम ना भी लो, जैसे भी अगर ऊपर है तो ऊपर भी यही लगा दो, a+b a-b²-b², ऐसा कुछ बनाने का सोचो, ठीक है? तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो चीज़ बन ही जाती है। तो लेट्स ट्राई इन दिस क्वेश्चन। तो अभी इसमें क्या करते हैं, अभी हम इसमें -2 -5 को ले लेते हैं a, और √3 को ले लेते हैं हम इसमें b, बन जाएगा। फिर हमारा इधर बन जाएगा a+b, इधर बन जाएगा a-b, इधर बनेगा आपका a+b। तो अब जब इनका एलसीएम लेंगे तो नीचे बन जाएगा a² माइनस b²। ऊपर देखो, ऊपर क्या क्या कटेगा, आई गेस बस यही कटेगा, बाकी सब तो ऐड ऑन हो जाएगा। सो 2 √2 माइनस √5, ठीक है? अब इसको देखो, 3 चौके 16, तो इसको हम अलग से यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। 3⁻16 प्लस में 6 दूनी 12, 2 हो जाएगा ना, ये स्क्वायर होता है 9, 6 दूनी 12, तो 12 ऐड करेंगे तो 3⁻28 आ गया ऊपर, ठीक है? नीचे कितना आएगा, 3 3 जा 7 3 जा 21, तो 3⁻21 प्लस में 8 29। सो आपका ये आ गया 1/3। अब इसको सॉल्व करते हैं। सो a² प्लस b² माइनस 2ab माइनस 3, 7 4 4 माइनस 2√10, ठीक है? अब देखो हमें कुछ ना तो कुछ कैंसिल करना है, ऊपर नीचे का है, कुछ तो करना है। एक बार 2 कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा 2 माइनस √10। अब अगर मैं √2 और कॉमन ले लूँ, √2 और मैंने कॉमन ले लिया, इधर क्या बच जाएगा √2, इधर क्या बच जाएगा √5। ये √5 इंटू √2 ही तो होता है ना √10। तो ये इससे ये कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बच गया 1/√2 प्लस 1/3 इक्वल टू a+b√2, ठीक है? इसको ऊपर ले जाओ, रेशनलाइज कर देंगे इसको, तो ये आपका बन जाएगा √2/2, ठीक है? तो अब b की वैल्यू आ गई 1/2 और a की वैल्यू आ गई 1/3। तो a की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे 1/3, b की वैल्यू रख देंगे 1/2, तो 1 1 कैंसिल, 1 + 1 2, 2 विल बी द आंसर। देख लो एक बार अच्छे से, कुछ समझ में ना आए तो बता देना, अभी कुछ मैंने गलत किया तो भी बता देना, 2 आंसर है। चलो, हमें पाई चार्ट दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है, स्टूडेंट्स इन डिफरेंट स्कूल्स इन 2016, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं, और क्या दे रखा है हमें दे रखा है स्कूल्स, और ये परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग हाइट लेस देन 150 सेंटीमीटर, ओके लेस देन 150 हमें दे रखा है। पूछा क्या है, इन विच स्कूल इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग हाइट 150 सेंटीमीटर और मोर द सेम एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल ए हैविंग हाइट लेस देन 150 सेंटीमीटर, ओके। तो स्कूल ए का, जो आपका स्कूल ए है, पहले उसका निकाल लो, क्योंकि बाकी तो हमें बहुत सारे, हमें ऑप्शंस में से जाना पड़ेगा, या तो हमें इधर से देखना पड़ेगा। तो जो हमें दे रखा है पहले उसका निकाल लेते हैं, जो फिक्स है, जिससे हमें इक्वेट करना है। तो हमें दे रखा है स्कूल ए का, तो स्कूल ए में क्या है 40% है, यानी कि 40 इंटू में 45 लिख सकते हैं, ऐसे आ जाएगा ना ये 100, तो 100 से मैंने काट दिया पहले ही, तो 40 इंटू
45 इसको मान के चलो, 45 है नहीं, 40 इंटू 45, ठीक है। 1 मिनट, नहीं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे स्कूल्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी तो अलग है ना। तो हमारा यहाँ पे ये होएगा 40% ऑफ 23% ऑफ 45, ये दोनों कट जाएगा। मैं इसको इरेज कर देती हूँ, थोड़ा साफ साफ दिखेगा। तो हमारे पास ये रहना चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास ही आना चाहिए। इसको अभी सॉल्व कर लेते हैं। ये कट गया, 525922, तो ये हमारा आ गया 18 इंटू 23। अब हम देख लेंगे कि 18 इंटू 23 कौन सा बन रहा है, ओके। तो ऑप्शन वाइज देखते हैं। सबसे पहले है ई है 80, और हमें तो उन्होंने बोला है मोर देन, मोर आना चाहिए। 80% अगर लेस है तो 20% मोर हो गए। ई का निकालेंगे तो 20 मोर, 20 इंटू में ई का कितना है 13, 13 13 दूनी 26, नहीं बनेगा ये, तो नहीं बनेगा ना। अगर मैं यहाँ पे 45 भी कर दूँ तो भी नहीं बनेगा कहीं से भी ये, तो ठीक है। डी, सेकेंड ऑप्शन डी है, तो डी का देखो 54%, यानी कि 46 इसका आ जाएगा मोर वाले का। 46 इंटू में 20% ऑफ 540, 20% ऑफ 45, सॉरी 540 बोल रही हूँ, 45, ठीक है। तो इसका अगर हम देखें तो देखो ये 18 इंटू 23 है। अगर मैं 20, चलो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। 5 9, अगर यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो क्या बनेगा, ये 2 इंटू 23 इंटू 18, सो 18 इंटू, सॉरी 9, 23, सो डी विल बी द आंसर। अगर आप यहाँ से 45 को ना भी लेना और केवल इनको कंपेयर करें, जैसे 40 इंटू, क्योंकि 45 तो हर किसी में कम है, सॉरी हर किसी में सेम है, तो 40 इंटू 23, तो आगे हर उसी को ही कंपेयर करते जाओ। जैसे अब सीधा ये हो जाता अगर हम 45 ना लेते तो, जैसे 46 इंटू 20, तो इसको 23 इंटू 40 भी लिख सकते हैं ना, तो हमारा ये आंसर हो जाता। तो ऐसे कंपेयर करके क्या करो, पूरा मत सॉल्व करना कभी, पूरा इसको मल्टीप्लाई करने बैठ जाओ फिर आगे इसको भी मल्टीप्लाई करो। और अगर पूरा मल्टीप्लाई गलती से कर भी रहे हो ना, तो फिर बाद वाले जब आप ऑप्शन को सॉल्व करो तब केवल यूनिट डिजिट देखो, ठीक है, यूनिट डिजिट। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। चलो अब इस वीडियो को फिर से पॉज करो और फिर से इसको सॉल्व करके देखो, मेरे साथ साथ सॉल्व किया करो, ऐसे में किया करो कि अभी देख लिए फिर बाद में, चलो बाद में कभी सॉल्व करके देख लेंगे, उससे आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा टाइम वेस्ट से ज़्यादा, ठीक है। तो अभी इसको सॉल्व करके देखो, कर लिया होगा आप लोगों ने सॉल्व। तो कैसे किया है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया प्लस दिस, है ना, फिर इसको इसके साथ कर दिया प्लस दिस। चलो ये तो ईजी भी है मल्टीप्लीकेशन। पर ऐसे मत किया करो, जब ये बड़ा कुछ दे रखा हो ना, बड़ी डिजिट्स हो, तो उसको आप ऐसे लिखा करो। अब देखो आपको ये तो दिख रहा है ना कि 5 है 10 है, एलसीएम लेने में कितनी आसानी रहेगी, कितना इजी रहेगा। सो जस्ट राइट इट लाइक दिस, 174 प्लस 3/5 लिख सकते हैं ना ऐसे। और देखो ये फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन गया है, तो प्लस दिस, नाउ 174 माइनस 137 प्लस 3/5, मैंने साथ साथ इसलिए लिखा ताकि हमें इजी रहे। अपॉन में पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, बाद में इधर चलेंगे। 312, अब इसको डायरेक्ट कर दो मल्टीप्लाई, क्योंकि नीचे तो ऐसा कुछ भी नहीं, और क्या पता ऊपर ऐसा कुछ बन जाए कि कट जाए। तो 3120 प्लस 3123 अपॉन 10, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करो, इजी रहेगा ना ऐसे, बजाय कि इसके आप मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। तो 7 और 4 11, 1 11 1 31, सॉरी 3, ठीक है, प्लस अब इनका एलसीएम लो, 10 2 6 13, 6 आ जाएगा ना यहाँ से, और 7 यहाँ से, 7 और 6 13। तो अब इसका मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा इतना, और 10 इसमें प्लस करूँ तो 3123, देखो बन गया ना। तो ये पूरा कट जाएगा। और अगर आप एक एक चीज़ मल्टीप्लाई आपने जैसे की भी होगी अभी, अगर आप ज़्यादा फैमिलियर नहीं है क्वांट क्वेश्चन से,
तो आपने ऐसे ही किया होगा, और आपकी गलती नहीं है। हम बिल्कुल ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं क्वेश्चन को, तो ऐसे ही सॉल्व करते हैं। पर थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि हाँ कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें कि हमारा टाइम कम लगे। तो अब चलो, अब इसको करो। 7 3 37 प्लस 10 6 -1, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 369/10, 70 -1, हाँ 369/10। चलो अब इसको याद रखो, हम इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा साफ कर देते हैं। सो आप वीडियो पे पीछे जाके देख सकते हैं मेरे इरेज करने से पहले, अगर आपने नोट ना किया हो तो। सो हमारा ये बन गया 369/10 इंटू 5/50 41 इंटू, अब इसका देखो, 3 दूनी 4 दूनी 8 और 3 11, 11/4 माइनस 11/12, 12, 11 कॉमन ले लो, 3 -1 2, 2 है ना, 2 6, तो 11/6 आ जाएगा ये आपका, ठीक है। तो 6 -11/6, 36, यानी कि 25, 25/6 इंटू 25/6, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं की हमने, देखो ज़रा एक बार। नहीं की शायद। चलो 5 2 जा, उसके बाद आपका ये 3 पे कटेगा, 1 2 3, सॉरी 2 2, 3 2 5 और 1 6। अब ये किस पे कटेगा, किसी पे कटता हुआ नहीं दिख रहा मुझे तो ये, है ना। ओह ये कट जाएगा ना 3 पे, 3 तो 25 3 जा 75 अपॉन 2 2 4, ठीक है। 2 2 जा 4 आई मीन। तो ये कितना हो जाएगा, 135 8.37 25 18.75. So this is the answer. Okay, that's how we solve these questions to save our valuable time. Okay. The next one is the market price of article is इतना 1650 है market price. So shopkeeper allows a discount of 10%. मैंने आपको मेरे पिछले लेक्चर में बताया था कि डिस्काउंट हमेशा मिलता है MT पे, मार्क प्राइस पे, मार्क रिटेल प्राइस और MRP यू कैन से, और आपको डिस्काउंट सॉरी प्रॉफिट या फिर लॉस ये हमेशा होता है CP पे, ठीक है। जो आपका कॉस्ट प्राइस, जो आपका लागत मूल्य होता है, ऐसा ही कुछ बोलते हैं, लागत जो राशि होती है वो, उस पे, और मार्क प्राइस जो आप निर्धारित करते हैं राशि, उस पे आपको डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। तो डिस्काउंट दिया 10% का MP पे और गेट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, वो 10% प्रॉफिट मिला आपको CP पे। इफ ही सेल्स इट एट दिस द प्रॉफिट परसेंटेज विल बी ओके। सो आप ये लिख लो MP SP, यहाँ लिखा जाएगा क्या, नहीं, एक मिनट मैं इसको नीचे लिख लेती हूँ। चलिए MP SP एंड CP, वो आपको देखना पड़ेगा कि आपको बीच में रखना क्या है, ठीक है। अभी जैसे यहाँ पे प्रॉफिट वाले केस में भी CP/SP होगा और यहाँ पे भी MP/SP होगा, तो जो चीज़ दोनों में होगी, दोनों रेशो में होगी, वही आप बीच में रखना। तो आपको बोल रहा है कि डिस्काउंट दिया है 10% का, 10% यानी कि 1/10, हर 10 रुपये पे 1 रुपये का डिस्काउंट, यानी कि 10 की चीज़ आपको बेची है 9 में, ठीक है। ब्लैंक के साथ वाला, ब्लैंक यहाँ पे होगा तो उसके साथ वाली वैल्यू रखते, तो यहाँ पे 9 था तो यहाँ पे 9 रख दिया मैंने। मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हो, सॉल्व मैंने यहाँ पे 9 क्यों लिखा है, समझ में आ जाएगा आपको। प्रॉफिट ऑफ 10%, अच्छा हर, अब फिर से 1/10, 1/10, तो हर 10 रुपये पे 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 10 की चीज़ 11, ब्लैंक वाली जगह पे ब्लैंक के साथ वाला 11, ठीक है। कुछ भी कहीं पे कट नहीं रहा है, तो 110, 99 और 90, 110, 99 और 90, तो बोल रहा है कि जो मार्केट प्राइस है ना वो 1650 है, तो इसकी वैल्यू हमारे हमारे अकॉर्डिंग वैल्यू आई है 110, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 1650, यानी कि इनटू में 165, आपको याद होगा 11 का 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, या ऐसी चीज़ें याद रखने की होती है, ठीक है। तो मुझे याद है कि 11 को जब भी 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 165 आएगा, और ये मल्टीपल ही दी होती है, जो आपका आएगा ना जो क्वेश्चन में होगा, मल्टीपल होंगी ही होंगी, पक्का होंगी, ठीक है।
भले ही वो 2.5 टाइम्स हो, पर वो टाइम्स जरूर, ऐसे नहीं होएगा 2 1 2 3 4 ऐसा कुछ आ जाए, कभी भी नहीं होगा ऐसा। ठीक है, 1 मिनट। तो ये हमारा 15 टाइम्स है, तो यहाँ से हमारा क्या निकलेगा, सीपी निकल जाएगा। 15 × 135 यानी कि 1350, ये हमारा सीपी रहा है। तो वो बोल रहा है अगर हम इसको 1593 1593 पे अगर इसको बेच दे तो हमें प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा सीपी पे निकलता है, तो उसका आप डिफरेंस निकाल लीजिए, यानी कि 243। और सीपी पे निकलता है तो नीचे आ जाएगा आपका सीपी, इंटू में आएगा 100। 0 से 0 कैंसिल, 5 2 जा 5 2 10 27। ठीक है, ये आपका जाएगा आई गेस 9 पे जाएगा ना, 9 दूनी 18 6, हाँ 9 पे। तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 18% विल बी द आंसर फॉर योर क्वेश्चन। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। If 66 2/3% goods and are sold at 30% profit, 25% are sold at 16% profit, and rest at 48% loss, there is a profit of rupees 180. The cost price of the goods is okay. अभी देखो अगेन, अगर हम इसी क्वेश्चन को ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे कि 100% भी मान लिया या फिर कितना ही मान लिया और इसको एक एक को सॉल्व करें तो बहुत टाइम लेगा। उसकी बजाय हम क्या करते हैं, अब 66 2/3, 66 2/3 इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम 2/3 भी लिख सकते हैं परसेंटेज को। ठीक है, जैसे 25% को 1/4 लिख देते हैं ना, वैसे ही कैसे आएगा ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करके 198 + 2 यानी कि 200, 200/3 परसेंटेज के नाम का 100 लगाया, कितना हो गया आपका 2/3, इसलिए मैंने लिख दिया। आगे आपका है 25% गुड यानी कि 1/4, किसी चीज का 1/4 पार्ट, ये है 2/3। इसका एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा। अब 12 का 2/3 आप निकालेंगे तो 4 यानी कि 8, 1/4 निकालेंगे यानी कि 3, 8 और 3 11, बच गया कितना 1। तो आप इसको ऐसे मान लीजिए कि टोटल आइटम्स 12 थे और 8 3 और 1 ऐसे में हमने उसको डिवाइड किया है। ठीक है, स्पेस हमारे पास थोड़ा सा कम है तो मैं इसको इरेज कर दे रही हूँ, साथ में आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं वैल्यूज को। तो अभी हमारे पास यानी कि हमने ऐसे बांटा है, उसमें ऐसे ऐसे आइटम्स हमने ब्रेक कर लिए। उसके बाद वो बोल रहा है कि पहले पे हुआ उसको 30% का प्रॉफिट, यानी कि 3/10 का, यानी कि हर 10 पे उसको 3 रुपए का फायदा हुआ, यानी कि 10 की चीज उसने 13 में बेची है। अगला बोल रहा है कि सोल्ड एट 16% प्रॉफिट, 16% प्रॉफिट का मतलब 4/25, 4 × 4 = 25, यानी कि हर चीज उसने 25 रुपए की चीज पे उसको 4 का फायदा हुआ, यानी कि हर 25 रुपए की चीज को उसने 29 रुपए में बेचा है। ठीक है, और जो बच गए जितने भी वो बेचे उसने 48% लॉस पे, मतलब कि 12/25, 12/25, यानी कि हर 25 रुपए की चीज पे उसको 12 रुपए का नुकसान होके उसने 13 रुपए में बेची है वो चीज, और 25 रुपए की चीज। ठीक है, तो अब देखो ऐसा तो नहीं हो सकता ना, एक पेन है, वो एक पेन कहीं पे तो एक शॉप पे मेरे को मिला 10 रुपए का, फिर मेरे भाई को मिला 25 रुपए का, मेरी बहन को मिला 25 रुपए का, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि बंदे जा रहे हैं उनको वही सेम चीज अलग अलग, उसकी मतलब उस शॉपकीपर के लिए उस चीज की कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस हो सकता है कि अलग अलग हो, जो होगी भी, लेकिन कॉस्ट प्राइस जिस पे वो लेके आया वो तो सेम ही रही होगी ना। तो अब हम क्या करेंगे, हमें सबका सेलिंग सॉरी कॉस्ट प्राइस जो है वो इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करने के लिए हर रेशो को आप इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तभी तो 50 आएगा ना, और इधर भी 50 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो और इन दोनों को 2 से, तो देखो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50, 13 × 5 = 65, 2 से 50, ये हो जाएगा 58, 50, और इधर हो जाएगा आपका 13 दूनी 26। ठीक है, अब देखो ये तो आपकी एक एक टॉय की या फिर एक एक जो भी गुड्स थे, जो भी सामान था, एक एक की यूनिट की आपकी वैल्यू निकली है ना, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। लेकिन हमारे तो एक जगह था 8, एक जगह था 3 और एक जगह था 1, तो
तो इसको मल्टीप्लाई करो 8 से, मतलब जिसका जो भी था, इसका 8 था, इसका 3 था, इसका 1 था, तो बस वही मल्टीप्लाई करना है, 3 और इसका 1। तो यहाँ लिख दे रही हूँ मैं, इसको इरेज कर देती हूँ अब। तो 400 की चीज़ ये हो गई आपकी 0,452, ठीक है। ये हो गई 150, ये हो गई आपकी 471, ये हो गई आपकी 50, ये हो गई 26, ठीक है। अब टोटल कॉस्ट प्राइस और टोटल सेलिंग प्राइस को कर लेते हैं ऐड, तो कितना हो जाएगा 200, 600 हो गया है आपका। ये कितना हो जाएगा आपका 027, ठीक है, 600 और 720। अभी बोल रहा है कि देर इज अ प्रॉफिट ऑफ 180, कि टोटल कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में जो प्रॉफिट आया वो 180 का है, लेकिन हमारा तो 120 का आ रहा है। तो वही है ना कि हमारे अकॉर्डिंग 120 जो चीज़ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो 180 दे रखी है। तो इसने पूछा क्या है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स इज, कॉस्ट प्राइस क्या रहा है गुड्स का। तो हमारे अकॉर्डिंग जो चीज़ 600 है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगी, यही तो निकालना है ना। 60 पे चला जाएगा, 2 3 300, 300 इंटू में 3, 900, तो 900 आपका आंसर हो गया, ठीक है। हर क्वेश्चन को मेरा सॉल्यूशन देखने से पहले या मेरा मेथड देखने से पहले आप खुद सॉल्व कीजिए, फिर आपको डिफरेंस जब दिखे ना कि हाँ मेरा तो टाइम जो लग रहा है, मैं जैसे क्वेश्चन कर रहा हूँ उसमें मेरे को लग रहा है 3 से 4 मिनट, लेकिन ये तो हो दे रहा है एकदम 1 ही मिनट में, तो आपको खुद ही डिफरेंस पता चल जाएगा और बेटर भी लगेगा। लेकिन आपके पास अगर किसी क्वेश्चन का और अच्छा सॉल्यूशन है और बेटर सॉल्यूशन है तो आप प्लीज पोस्ट दिस सॉल्यूशन इन द कमेंट सेक्शन। आई ऑल्सो वांट टू सी दैट सॉल्यूशन एंड आई वुड अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। So moving on to the next question. Water flows at 2.5 kilometer through a pipe of radius 3.5 centimeter into a rectangular tank of length 10 meter and breadth 8.8 meter. The time in which the level of water in the tank will rise by 42 centimeter is okay. सबसे पहली बात ये देखो, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, आपके पास 3 डायमेंशंस हैं, उन सबको किसी भी एक में ले लो। मैं ट्राई करती हूँ सबसे छोटी वाली में लेने का, ताकि कोई कैलकुलेशन में गलती ही ना हो। बाकी आप, आपकी मर्जी है, आप हर किसी को आप बड़े वाले में भी कन्वर्ट कर सकते हो। छोटी वाली में इसलिए लेती हूँ मैं क्योंकि उसमें मल्टीप्लाई हो जाता है, डिवाइड का कोई झंझट नहीं रहता। डिवाइड वाले में हम ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं, ठीक है। तो देखो ये क्या बोल रहा है कि एक ना पाइप है, ठीक है, उस पाइप में वाटर फ्लो हो रहा है, उस पाइप की जो लेंथ दे रखी है, क्या हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है, ओके। तो पाइप की लेंथ अभी हमें नहीं पता, दे रखी है वैसे, पर अभी हमें समझ नहीं आ रही है क्या लेंथ है, ठीक है, बाद में देखेंगे उसको। पाइप की जो रेडियस है वो है 3.5 सेंटीमीटर्स, ओके। फिर हमारा जो उसमें पानी है ना, पानी जो गिर रहा है वो एक रेक्टेंगुलर टैंक में है, एक रेक्टेंगुलर टैंक है, बना देते हैं रेक्टेंगुलर टैंक। उसकी जो ब्रेड्थ है, ये वाली जो चीज़ है, ब्रेड्थ जो उसकी है वो आपको दे रखी है 8.8, लेंथ उसकी दे रखी है आपको 10 मीटर्स, और उसकी हाइट आपको पता नहीं है। अब देखो वो बोल रहा है जो पानी गिर रहा है ना, तो वाटर राइज जो हो रहा है वो 42 सेंटीमीटर हो रहा है, तो हमें टैंक का तो हाइट हमें चाहिए भी नहीं, हमें तो बस उतनी हाइट चाहिए जितना पानी रेज हो रहा है। मान लो पानी इतना उसमें भर गया है, तो हमें हाइट भी तो इतनी ही चाहिए ना, बस इतनी ही हाइट चाहिए, हमारा काम बन गया। ये दे रखे 42, तो टैंक की हमारे पास लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों डायमेंशंस हो गई हैं, 10, 8.8 और ये आपकी 42। इसको भाई 1000 कर लो, इसको 880 कर लो और इसको 42 सेंटीमीटर ही रहने दो, तो इस सेंटीमीटर में हो गया सब, हो गया सब कुछ। तो अब हमारे पास रह गया पाइप। पाइप की हमारे पास, अब पाइप जो है ये सिलेंडर में होगा, ठीक है। तो इसका हमें क्या चाहिए, हाइट चाहिए, रेडियस हमारे पास हो गया है। वॉल्यूम निकालने के लिए तो, क्योंकि वॉल्यूम ही तो आएगा ना पानी का, तो अब देखो पाई आर स्क्वायर एच, आर हमारे पास है, एच हमें पता नहीं है। तो अब आप 1 घंटे के हिसाब से देखो कि 1 घंटे में वो कितना पानी ले सकता है पाइप जो है, हाँ 2.5 किलोमीटर, तो हम उसकी लेंथ मान लेते हैं 1 घंटे के हिसाब से 2.5 किलोमीटर, ठीक है। तो इसकी जो हो गई लेंथ वो हो गई 25 इंटू में 100 इंटू में 100 अपॉन 10, सॉरी इंटू में 1000,
इंटू में 100, तो ये आ गई 25 इंटू 10⁴ सेंटीमीटर आपकी लेंथ आ गई, यानी कि हाइट आ गई सिलेंडर की। जो पाइप है उसकी रेडियस आपको पता ही है। और अब हम क्या करेंगे, अब हमें जो इसकी वॉल्यूम है उसको इसकी वॉल्यूम से कंपेयर करना है, बस हमारा काम हो जाएगा। फिर 22/7 दे रखा है, लेना है इंटू, क्वेश्चन में ज़रूर देख लेना पाई क्या लेना है, क्योंकि वो वही पाई बोलते हैं जिससे आपकी कैलकुलेशन ईजी रहे। यहाँ लिख दे रही हूँ मैं, पाई इंटू r², h हमारा क्या आया है 25 इंटू 10⁴, ठीक है। इंटू में x मान लेते हैं उस टाइम को, ये तो 1 घंटे का है, 1 घंटे में हो रहा है इतना, तो x घंटे में मान दे रहे हैं कि हम कितना होगा इसकी वॉल्यूम, 1000 इंटू 880 इंटू 42, ठीक है। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी और यही हमें सॉल्व करना था, ठीक है। तो ये था ये क्वेश्चन में, ध्यान से देख लो, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, गलत हुई है तो बता देना। Next one is, at the beginning of a year, the ratio of the number of boys of age up to 16 years to these over, क्या लैंग्वेज है यार, of age up to 16 years to these over 16 years was 8:5। ओके, 16 साल तक के जो लोग थे और 16 प्लस जो थे, तो इनका रेशो दे रखा है 8:5 एक साल की शुरुआत में। At the end of the year, the ratio becomes 6:7 as 40 boys has reached the age of 16 years. By then, what is the total number of boys in the school if no boy left or got admission during the year? इस स्टेटमेंट ने इजी बना दिया क्वेश्चन को, ठीक है। और दूसरी क्या चीज ने इजी बनाया, जो ये रेशो दे रखा है ना, सॉरी जो डिफरेंस दे रखा है ना दोनों रेशो के बीच का, वो सेम है 2। तो अब तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि अगर ये डिफरेंस सेम ना होता ना तो हमें डिफरेंस सेम करना पड़ता, या फिर हमें एक्स या वाई लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता, और उससे हमें ज़्यादा से सॉरी कम से कम हमारे 2 मिनट लगते ही लगते। पर अभी क्या है, ये देखो जितने यहाँ से जा रहे हैं उतने ही यहाँ पे आ रहे हैं बच्चे, तो टोटल जो डिफरेंस रहा है वो कितने लोगों का रहा है, वो 40 बॉयज का रहा है, 40 लोग बच्चों का, लड़कों का, ठीक है। 2 का मतलब 40, जो हमारा 2 आ रहा है वो क्वेश्चन का 40 आ रहे हैं। तो अब बताना क्या है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल। टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, कोई स्कूल से बाहर तो गया ही नहीं है, बस 16 से 16 प्लस हो गए हैं वो। तो यहाँ भी एडिशन इसका 13 है, यहाँ भी 13 है, और इजी बन गया है क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। तो जो चीज़ हमारे अकॉर्डिंग 13 है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी होनी चाहिए, 20 का मल्टीपल आ रहा था ना ये 2 से 40, इंटू 20 यानी कि 260, यानी कि 260 लड़के थे, ठीक है। इसको वैसे बिल्कुल मत करना, 8x मान लिया, इसको 5y मान लिया और फिर उसको माइनस कर रहे हो, ऐसे ही किया करो क्वेश्चन को सॉल्व। अगर ये रेशो इक्वल नहीं होता तो हम सबसे पहले हम इसमें क्या चीज़ इक्वल करते हैं, कुछ भी दे रखा है ये 4:3, और डिफरेंस अगर सेम नहीं है, मान लो कि 2:6 ऐसा कुछ है, नहीं 7 मान लो, 2:7, तो ये तो सेम नहीं है, यहाँ से 4 है यहाँ से 2 है, तो हम क्या करते हैं, 4 और 3 7, 7 और 2 9, यहाँ 7 है यहाँ 9 है, तो हम इस सम को इक्वल करते, इक्वल इन द सेंस कि यहाँ जितने बच्चे यहाँ थे वही वही तो बच्चे यहाँ होने चाहिए ना, तो हम पहले इसको इक्वल करते हैं फिर हमारा क्वेश्चन करते हैं हम। पर इसमें तो सब चीज़ एकदम सेट दे रखी है, कुछ है ही नहीं, केवल ये हमें डिफरेंस कंपेयर करना था। The next one is, let x be the greatest number which is such that when 328, 10139 and 19200 are divided by it, the remainder in each case is the same. सेम क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट वीडियो में करवाया है, अभी आप ही करोगे इसको, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी, अभी करके देखो, ठीक है, वीडियो पॉज करके, वरना फिर मैं तो अभी बता ही दे रही हूँ सॉल्यूशन। तो जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना उसमें क्या किया करो, सबसे बड़े से सबसे छोटा लिख लो, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में जो हम बोलते हैं वो लिख लो। अब इनका डिफरेंस देखो, यह आएगा आपका 1609, यह आएगा आपका 1586। अब फिर से इसका डिफरेंस देखो 2210,
तो यही वो नंबर है जो इनको डिवाइड कर रहे हैं, जिससे रिमाइंडर सेम आएगा। डिवाइड करके देख लो, ठीक है। तो इसी की सम ऑफ डिजिट्स पूछे, तो 2 2 4 और 1 5। आई होप आपने कर लिया होगा ये मेरे करवाने से पहले सॉल्यूशन, क्योंकि मैं 2 बार बता चुकी हूँ, 2 नहीं तो 1 बार तो पक्का बताया ही बताया है मैंने। और जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो पुरानी वीडियो ज़रूर देखें, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ज़रूर बता रखा है मैंने हर वीडियो में। The next one is the two adjacent sides of a parallelogram are this and this. Okay. तो रोम्बस लग रहा है पर पैरेललोग्राम ये समझ जाना, ठीक है। तो इसकी एक है 140, एक है इसकी 130, एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 150। लेट्स से यही है 150, एंड द सम ऑफ द पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम इज इतना। इफ द एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दिस पैरेलल साइड्स। ओके। ट्रेपेजियम जो होता है आपका वो ऐसा दिखता है, ठीक है। तो ए साइड मान लो ए है, ये बी है, तो आपको ए प्लस बी दे रखा है कुछ 1050। आपको निकालना है ये डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू में द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, द हाइट, ठीक है। और इसका एरिया आपको इसके एरिया के इक्वल दे रखा है। तो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो उसको 2 इक्वल एरिया में बांट देता है। तो जो ये होगा A1 होगा वो इक्वल टू A2 होगा। तो हम अगर इस ट्रायंगल का एरिया निकाल ले तो वही इस ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया भी होगा। तो हम इसका एरिया निकाल लेते हैं। अब इसका एरिया कैसे निकाल लें? हमारे पास तो हाइट नहीं है, हमारे पास ये एंगल भी नहीं है। हीरोल्स फॉर्मूला से पढ़ा है ना। मान लो ये 130 है, 140 है, ये 150 हो गया। हीरोल्स फॉर्मूला लगा देंगे। हीरोल्स फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर निकालो फिर सेमी पेरीमीटर निकालो। पेरीमीटर निकालेंगे, पेरीमीटर कितना होगा इसका? ये हो जाएगा आपका सम 420। पेरीमीटर हो गया 420, तो सेमी पेरीमीटर डिनोटेड बाय एस, तो वो हो जाएगा 210, यानी कि इसका हाफ आ गया। अब ह्यूमस फॉर्मूला बोलता है एरिया इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए। जस्ट अ मिनट, पता नहीं क्या हो जाता है इसको पॉइंटर को। एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। ए यानी कि एक साइड, बी यानी कि ये, सी यानी कि किसी किसी को भी कुछ भी मान लो, क्या फर्क पड़ता है। तो अब इसको हम क्या लिखेंगे? एरिया इक्वल टू अंडर रूट 210 माइनस 180, 21 माइनस 18 13 80, 21 माइनस 15 60, 21 माइनस 14 70, ठीक है। अब देखो साफ साफ दिख रहा है 70 इंटू 3 है, 70 बाहर निकाल लो। ऐसे बाहर निकालते जाओ, बस 70 बाहर निकाल दिया। क्या रह गया? 3। 3 ये यहाँ से रह गया आपका 3, यहाँ से रह गया 3 इंटू 20, 3 बाहर निकाल लो। 3 बाहर निकल गया। अब यहाँ पे है 20, ये है 20 इंटू 4, 20 बाहर निकाल लो और फिर 2 बाहर निकाल लो। तो ये बन जाएगा 3 दूनी 2 दूनी 4, 3 12 7 84, 8400। कुछ गलत कर रहे हैं क्या? नहीं, सही कर रहे हैं, ठीक है। तो 8400, कुछ है क्या गलत इस पे? 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 दूनी सॉरी 12 7 84, 8400। हाँ सही है, ठीक है, ओके। तो ये हमारा हो गया 8400 इंटू में 2 ऊपर ले जाओ, 2 अपॉन में ए प्लस बी जो दे रखा है 1050, ये मुझे 7 पे कटता हुआ दिख रहा है, इक्वल टू एच। तो ये कितना आ जाएगा? 1200, 1284, यह आ जाएगा 750। 1200 था ना, 3 पे कट जाएगा, 1 0 से पहले तो 1 0 काट दो, 3 से कट जाएगा, 3 पंजे 15 40, ये 8 पे कट जाएगा, 8 8 दूनी 16, 16 आ रहा है। तो हमारा कुछ कैलकुलेशन में ही मिस्टेक रही होगी, आई बिलीव सो। 8 दूनी 16, देख लेना, कुछ कैलकुलेशन में ही पक्का मिस्टेक हुई होगी मुझसे। हाँ आप लोग देख लोगे तो ये आंसर आ ही जाएगा 32, क्योंकि 16 आ रहा है ना, इसलिए मैं बोल रही हूँ 32 आ जाएगा, और तो कुछ वैसे भी नहीं आ सकता है। 16 का मल्टीपल कोई भी नहीं है, तो आंसर यही आएगा पक्का। कुछ कैलकुलेशन में रही होगी हमसे मिस्टेक, तो आप लोग ये देख लेना, ओके।
अच्छा, आ गया मुझे समझ क्या गलती रही है। ये देखो 8400 तो इसका एरिया था ना, हमने पूरे पैरेललोग्राम का एरिया तो लिया ही नहीं। पूरे पैरेललोग्राम का लेते तो वो आता इनटू में 1 और 2, ठीक है, क्योंकि A1 ये है और A1 इक्वल टू A2 है, पूरे का A1 प्लस A2 है, तो 8400 ये 8400 है, तो ये आएगा आपका 16800 इंटू 2, तो 16 इंटू 2 32। ओके, सो नेक्स्ट वन इज वही सेम क्वेश्चन है, ऊपर वाला पाई चार्ट ही है। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल ए एंड एफ हैविंग हाइट 150 सेंटीमीटर और मोर इज, कैलकुलेशन पूरा कैलकुलेशन ही है ये तो आप इसको सॉल्व कर लेना और देख लेना, आ जाएगा, पूरा कैलकुलेशन बेस्ड ही है, देयर इज नो कॉन्सेप्ट इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज द एवरेज ऑफ 12 नंबर इज 15.5। इसमें भी वैसे तो कैलकुलेशन नहीं है पर ये कर लेते हैं हम। तो क्या बोल रहा है, 12 नंबर का एवरेज 55.5 है, 55.5 इंटू में 12 इक्वल टू, कर लेना सॉल्व इसको, कर है क्या आएगा ये 0.666, ठीक है। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर इज 553.4 इंटू 4, 1 2, ठीक है। द नेक्स्ट 4 इज 54.6 इंटू 4, तो ये आएगा आपका 4.2, ठीक है। द 10th नंबर इज ग्रेटर देन 9 नंबर बाई 3, 10 नंबर इज ग्रेटर देन द 9 नंबर बाई 3 और वो 11 से 3 छोटा है और 12 से 2, सॉरी 11 से 2 छोटा है भाई, 11 से 2 छोटा है और 12 से वो 3 छोटा है, ठीक है। अब आगे क्या बता रखा है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द 9th एंड द 10th नंबर, ठीक है। तो आप इसको क्या करो, 10th को ही आप एक्स मान लो या फिर 9 को मान लो, सबसे छोटे को मान लेते हैं, अच्छा सही रहेगा। इसको मान लिया आपने, कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी वेरिएबल मान लीजिए एक्स, तो 9 हो गया आपका एक्स, 10 हो गया आपका x+3, हाँ x+3, 11 हो गया आपका x+5, 12 हो गया आपका x+3+6, x+6, ठीक है। अब ये किसके इक्वल हो जाएंगे, ये हो जाएंगे दिस माइनस दिस प्लस दिस, ठीक है, इनके इक्वल हो जाएंगे, तो ये क्या रहेगा, माइनस करके देख लेंगे, 6 और 4 10 की 0 1, 8 और 4 12 का 2 1 3 4 6 6 6, तो आ जाएगा 4 3 2, ठीक है। 1 2 3 4, 4x इक्वल टू 234 माइनस 11 और 3 14, यानी कि 220, यानी कि x इक्वल टू 55। तो x अगर आपका 55 आ जाता है तो आपसे क्या पूछा है, 9th और 11th का, 11th आपका ये था, यानी कि 60, यानी कि 55 प्लस 60/2, 5 11 2, 57.5 आपका एवरेज आ जाएगा। लास्ट वन फॉर टुडेज वीडियो, टुडेज लेक्चर इज दिस, ओके। देखो अब इसको ऐसे तो सॉल्व मत करना, इसको लिख लिया 1.69 प्लस फिर इसको सॉल्व कर लिया, फिर इसको सॉल्व कर लिया, ऐसे से लिख रहे हो, नहीं ऐसे नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चंस में पक्का कोई ना कोई आइडेंटिटी यूज होती है, तो बस उस जितना क्वेश्चन जितना टाइम आप वेस्ट कर रहे हो ना, उतना टाइम उस चीज़ में लगाओ कि आपको आइडेंटिटी समझ में आए क्या लग रहा है, क्योंकि वो समझ में आने के बाद एलिमिनेट हो जाएंगी चीज़ें। तो अगर मैं इसको ए मान लूँ, इसको बी मान लूँ, तो ऊपर भी लिख सकती हूँ a² + b² + ab, और इसको लिख सकती हूँ मैं a² + b² और 13 × 15 195 ही रहता है, तो आप ये चाहे करके देख लो, 13 पंजे 65, 13 एकम 13, 195, तो 1.95, तो माइनस AB, ठीक है। नीचे क्या बनेगा, नीचे आपका बनेगा a² का स्क्वायर प्लस b² का स्क्वायर प्लस a² b²। अच्छा ठीक है, इसका मतलब हमें ऊपर फिर से आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, इसको a लेके मतलब बड़ा ए मान लो और इसको b लेके, तो a + b a - b² - b², तो इसको लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये पूरे का पूरा ये आपका बन जाएगा a⁴
प्लस बी की पावर 4 प्लस 2a² b² माइनस, अब इसको करेंगे a² b²। देखो नीचे वाली चीज़ ही बन गई ना, इसमें से माइनस करेंगे तो एक ही a² b² रह जाएगा, ये भी हट जाएगा तो इससे कट जाएगा, आंसर आ गया 1। इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, 1.3 है या 1.4 है या 1.5 कुछ भी हो, सीधा एलिमिनेट हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थोड़ी सी लंबी हो जाती हैं पॉइंट सेक्शन की जब भी हम वीडियो सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सॉरी, क्योंकि वो मतलब एक एक चीज़ डिटेल में बतानी पड़ती है, तो आप भी उसको पूरा देखा करो। अगर आप इसमें ये लगा लीजिए कि 1 घंटा भी दे देते हैं ना पूरा, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे इसमें क्लियर। और फिर भी अगर कोई भी क्वेरी बचती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल देना, और मैं ट्राई करूँगी ऑल्टरनेट डेज पे वीडियोस प्रोवाइड करने की। एटीसी करेंगे हम पहले क्वेश्चन पेपर एटीसी के, उसके बाद करेंगे IBACIO के, और फिर करेंगे CHSL के, ठीक है। और हर सेक्शन के, जैसे इंग्लिश सेक्शन तो मैंने ऑलमोस्ट कवर करवा ही दिया है। अभी हम क्वांट पे हैं, क्वांट के भी तीसरा पेपर है ये। इसके बाद आई गेस 4 पेपर और बचे हैं, तो वो भी हम कर लेंगे। इंग्लिश का तो एक एक ही बचा होगा शायद, एक या दो। इंग्लिश हमने ऑलमोस्ट कर ली है एटीसी की सारी कवर। उसके बाद रीजनिंग करेंगे, और जीएस तो मैं करंट अफेयर्स रोज करवा रही हूँ आपको, बाकी तो स्टैटिक जीके तो आप लोग पढ़ लेना। और अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं स्टैटिक जीके के भी लेक्चर्स प्रोवाइड कर दूंगी यूट्यूब पे ही। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू हैव एनी डाउट जस्ट पोस्ट योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन। और बाकी कुछ भी पूछना हो तो कोई और क्वेश्चन हो, आप वो क्वेश्चन भी डाल सकते हैं, आई ईमेल यू द सॉल्यूशन। And yeah, thanks for watching the video. All the best for your upcoming exam. And goodbye. Take care. Thank you. All the best. और हाँ, एक और बात, मेरा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी मैं लिंक हर वीडियो में नीचे डाल देती हूँ। तो ज्वाइन दैट चैनल। आई पोस्ट current affair PDF into that channel. So okay, thank you. Bye. Take care.